بسم الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوم الحديبية والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. এবার যাই নবম পাঠ وصل उत्तर साइड चुन दी धरो وعن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا أدبرين فهزمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. رواه مسلم. حضرت سلمہ بن عکو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے دن آپ اپنے صحابہ کو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. اسی میں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ انصاف کے ساتھ آپ تقسیم کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کون کرتا؟ کہ منصف انصاف کرنے والا میں ہوں، وہ تو دشمن تھا. وہ جو شخص آیا وہ اسلام کا دشمن تھا. ظاہر میں تو اسلام میں تھا لیکن حقیقتاً وہ اسلام کا دشمن تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں انصاف نہیں کرتا تو کون کرتا ہے؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو سب کے سب کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گی، برباد ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں انصاف کو قائم فرما دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو انصاف کو قائم کیا کہ عورتوں کے حقوق دیے، مردوں کے حقوق دیے، بیوی کے حقوق بیان کیے. ایک دور وہ بھی تھا کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کو گھر میں قید کر دیا جاتا تھا، گھر میں قید کر دیا جاتا تھا. اور اس کی عدت کیا ہوتی تھی؟ ہمارے یہاں تو 4 مہینہ 10 دن ہے، لیکن اس کے یہاں کیا عدت تھی کہ وہ اب تک کی عدت میں بیٹھے گی کہ اسی ایک گھر کے اندر اس کو لیٹرن بھی کرنا ہے، پیشاب بھی کرنا ہے، ہر چیز اسی روم میں کرنا. اب وہ سال گزر گیا، 6 مہینہ، سال، 1.5 سال، تو ایک پرندہ بھیجتا تھا وہ لوگ اس روم میں. اب وہ پرندہ بدبو کی وجہ سے اگر مر گیا تو سمجھ آتا کہ اس کی عدت پوری ہو گئی. اگر نہیں مرتا یہ اس کو اور زیادہ پریشان کیا. سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کو وضع فرما دیے انصاف کے ساتھ کہ انصاف کیسے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں انصاف کو بھر دیا، انصاف سے پوری دنیا کو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص آ کر کے یہ کہہ رہا ہے اور وہ خوارج میں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ یہ جو ہے خوارج میں سے ہوگا اور اس کا حال یہ ہوگا کہ ایسے لشکر میں یہ شامل ہوگا کہ جس کے امیر جو ہوں گے بہت کالے کلوٹے ہوں گے.
اور उसके एक हाथ में गोश्त लटक रहा होगा, समझे, बहुत ज्यादा गोश्त का लोथड़ा लटक रहा होगा, और तुम उसको देखोगे तो उसी लश्कर में ये होगा। और वो वक्त भी आया कि हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब एक जंग में शरीक हुए, खवारिज के साथ जो जंग हुई थी, तो उसमें तमाम की तमाम पेशीगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई थी वो हर्फ बहर्फ सही साबित हुई। और मैं उस शख्स की तलाश में था कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए थे। आखिरकार मैंने उसको देखा तो वो निहायत ही अजीब व गरीब शक्ल सूरत का है, और मतलब कि उसका इस साइड में गोश्त लटक रहा है और इस साइड में हाथ पर, और अजीब व गरीब हालात है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग किए और उस जंग में मुसलमानों को फतह हुई और वो लोग क्या हो गए, शिकस्त खा गए। लेकिन वही खवारिज फिर क्या हो गया, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुश्मन हुआ। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए जब घर से निकले तो पीछे से आकर के उन खवारिजीन में से किसी ने हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद किया खवारिजी ने। और वो लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद पूरी जमीन में और मुसलमानों ने फितना बर्पा कर रखा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने तक ये नहीं हुआ। वो शख्स आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कह रहा था कि आप इंसाफ कायम कीजिए, इंसाफ से काम लीजिए, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए तलवार लेकर के और ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए, इसका सर अभी हम कलम कर दें, आप हुक्म दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये तो अलग मामलात हैं, आने वाले वक्त की भी पेशिनगोई बतानी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेशिनगोई बयान फरमाए, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बयान फरमा रहे हैं। وعن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك فمن يعدلك إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت أن لم أكن أعدل. فقال امرئ أضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ابو سعید یا اور جو صحابہ تھے وہاں ان کو ارشاد فرمائے کہ یہ جو شخص ہے نا کہ ایسے لشکر میں شامل ہوگا، ایسے گروہ میں شامل ہوگا کہ وہ تو نماز بھی پڑھے گا لیکن اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، رات بھر عبادت میں رہے گا، نماز پڑھے گا، قرآن تو پڑھے گا لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. سمجھے، قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. روزہ تو رکھے گا لیکن یہ روزہ اس کا کیا ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا. بظاہر تو یہ روزہ دار ہوں گے لیکن یہ روزہ جس نیت سے رکھا ہوگا دکھاوے کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھ لینا کہ وہ وقت بھی قریب ہوگا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے. اور آج بھی بعض لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں جن کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. مسلمان میں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں پیسہ کے لیے کہ ہم کتنا بہترین تلاوت کر لیں، کتنا بہترین پڑھ لیں کہ سامعین سنیں اور پیسہ ہم کو مل جائے. کہ رات میں بڑی اچھی تقریر کرنے والے پروگرام میں تقریر کریں گے، سمجھے، پیسے کی وجہ سے. کہ رات کو ایسا بنایا کہ رات کو اپنے بیچ لیا اس نے. جیسے مقررین حضرات ہے جو جلسہ جلوس میں جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بڑی بہترین تقریر کی، اب ان کو ہدیہ دی دیا، آپ 2500 روپے کم تو اسی وقت مایوس ہوتا. یہ کیا دیے ہیں، کچھ نہیں دیے.
तो दीन इसका नाम नहीं है। दीन तो नाम है कि आप अल्लाह के लिए वक्त हो जाइए, अल्लाह ताला के दीन को पहुंचाना है। रोजी का मालिक तो अल्लाह, अल्लाह देगा। जो दिया हदिया तार मिल गया, ठीक है, बिस्मिल्लाह कर दीजिए, मैं अब ये पहले तय कर लेना, तस्बीह कर लेना। जिस तरीके से तरावी पढ़ा रहे हैं, अगर तरावी में पहले तय और तस्बीह हो गई तो तरावी क्या, उससे बेहतर है कि आप तुरंत तरावी ऐसे आप उसमें नहीं रखना। जो पैसे पर पढ़ा रहा हो वैसा हाफिज नहीं पढ़ाना है। हाँ, अब ये जिम्मेदारी बनती है मुक्तदियों की कि हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं, कमजोर होते हैं माली एतबार से, तो लोग खुद ब खुद देते हैं, तो इसमें सवाब उनको भी हुआ, हाफिज साहब को भी हुआ। अगर आपने मुआवजा मुतय्यर कर लिया तो फिर ये कुरान को आपने बेचा, कुरान के हर्फ को बेचा, और कुरान इतने कम कीमत की चीज नहीं है कि आपने उतनी कीमत में आपने दिल। तो अल्लाह की बात आप कह रहे हैं, कुरान की बात कह रहे हैं, उसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये लोग तो ऐसे होंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे हलक से नीचे नहीं उतरेगा, नमाज पढ़ेंगे कबूल नहीं होगा, सजदों के निशानात होंगे, लेकिन वो सजदे के निशानात दिखावे के लिए होंगे। यक़रऊन अल कुरान ला युजाविज़ु तुराक़िअहुम यमरुकून मिनद्दीन, और वो दीन को टिमटिमाता हुआ यानी रोशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीन उनसे रोशन नहीं होगा, बल्कि दीन तो और बुझता हुआ चला जाए, दीन उससे और ज्यादा बुझता हुआ चला जाएगा। बड़े बड़े लच्छेदार तकरीर करने वाले होंगे, जुब्बा कुब्बा में होंगे, लेकिन बात जब करेंगे तो ऐसा मालूम होगा, और फिर उनकी हालात को आप अंदरूनी तौर पर देखें तो इस्लाम का दुश्मन नहीं। जिस तरीके से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करने वाला हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो हमला हुआ तो मजूसी था, आग का पुजारी था, वो आग की पूजा करने वाला था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं कि पता करो कि ये कौन कत्ल किया है, किसने हमला किया, कि कोई मुसलमान तो नहीं किया। कहा गया कि नहीं हजरत, ये फला मजूसी फिरोज लूलू ने आप पर हमला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि हम एक ईमान वाले के हाथ से कत्ल न हुए, एक काफिर और मुशरिक के हाथ से हम कत्ल हुए। तो ईमान वाले को जब एक ईमान वाला कत्ल करता है बेजा, तो उसमें क्या होता है, बड़ी खराबी होती है। और अल्लाह ताला ने इससे सख्त मना फरमाया है कि नहीं ऐसा नहीं करना। लेकिन ये लोग क्या थे, बोझ और अदावत लिए हुए थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बोझ था। आज भी इन खवारिजीन में से जिसको शिया कहते हैं, आज उन्हीं की नस्ल से ये दर नस्ल चलते आए, इनके अंदर दीन नहीं है। ये कुरान कहते हैं जो कुरान 40 पारा है, 33 पारा नहीं है, गलत है, नऊज़ बिल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं मानते कि नायब नहीं, हजरत अली नायब है। इसी तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं माने। एक हफ्ता का सफर करना है, आज ये एक हफ्ता के नमाज आज ही पढ़ लेगा जमा, ये है उनकी क्या तरीका था कि एक हफ्ते के लिए उनको सफर में जाना है, वो पढ़ लिया। लेकिन सुन्नत पर अमल नहीं करने वाला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर असल जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, वो मोहब्बत नहीं है। एक भी हाफिज कुरान आपको उसके नहीं मिले, कुरान का मुकम्मल हाफिज आपको मिल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं मिलेगा कि इन्हीं लोगों के आबा व अजदाद, इनके बड़ों ने, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कुरान की तिलावत कर रहे थे, वो कुरान की तिलावत के दरमियान इन लोगों ने उन पर हमला किया, और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त के दिल से आ निकली कि अल्लाह ताला तू तबाह कर दो। अब उसमें एक भी हाफिज नहीं होता है, होगा भी तो जानी फरोश होगा, कुरान का पूरे हाफिज नहीं हो सकता। आज ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस कुरान में तिलावत कर रहे थे, जो हमला हुआ तो खून के निशानात आज भी उस कुरान पर बाकी दिखा गया, तुर्की की म्यूजियम में रखा हुआ। तो जब आप सहाबी रसूल, दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दो बेटी की शादी, एक बेटी की इंतकाल हो गई, उसके बाद फिर दूसरी बेटी की भी शादी की हजरत उस्मान गनी से। ज़ुन्नूरैन इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, इस्लाम के लिए अपने माल को वक्फ कर दिया। आप उनके साथ 1 महीना घर में बंद कर दिया गया हजरत उस्मान गनी बिन खवारिजीन ने, और चटाई में लपेट करके उस चटाई में हल्का सा आग लगा दिया जाता
ताकि धुआं के जरिए से परेशान महरूम मत करिएगा। ये सख्त तकलीफ और अजियत दी गई और अल्लाह ताला की मार और फटकार इसको क़यामत तक की है। इसका इमाम वही होता है जो हरामी नस्ल होता है, समझे? इसका नस्ल सही नहीं होता, जब इमाम ही सही नहीं है, कुरान सही नहीं पढ़ने वाला है, तो तुम फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये बद्दुआ है। और ये तो खवारिजीन जब सर उठाया तो ये बहुत बाद में उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेंगोई फरमा रहे हैं। वअशहदु अन्ना अली इब्न अबी तालिब क़ातलहुम व अना माहु फअमर बिज़ालिका अर्रजुली फल्तुमिस फऊतिय बिही हत्ता नज़रतु इलैहि अला नाति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी नातहु व फी रिवायतिन क़ब्ल रजुलुन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो भी थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हजरत अबू सईद कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हर्फ बहर्फ गवाही पाया, मतलब गवाह तो मैं वहां था ही। अब मैं इस तलाश में था कि अली इब्न अबी तालिब क्या उनके हाथ से कत्ल होंगे या हजरत अली के हाथ से वो लोग कत्ल होंगे। तो वो तो कत्ल हुए, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ये लोग बाद में कत्ल कर दिए धोखा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम है कि मेरे नवासे को एक को जहर दे दिया जाएगा, दूसरे को कूफा में कत्ल कर दिया जाएगा, समझे? सुनते तो पता चल जाता। लेकिन इस्लाम के लिए देखिए, हम लोग होते तो घर में छुप जाते, कभी उधर जाते ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे बनाई कि नाना जान ने कहा नाना जान के दीन को बचाना है, चलना है, मरना तो है ही, इंतकाल तो करना ही है, दुनिया में रहने के लिए तो आए नहीं हमेशा के लिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशेंगोई पहले फरमा दिए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहते तो न जाते, फजर में अपने आप को घर में रखते, बॉडीगार्ड नहीं रखते थे। हजरत अमीर मुआविया पर भी हमला हुआ, प्लानिंग हुई थी कि हजरत अमीर मुआविया, हजरत अली और बड़े बड़े जो सहाबा थे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और लोग थे, इन सब की प्लानिंग हुई कि इन सबको एक साथ मार दो, इस्लाम बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। कौन प्लानिंग कर रहा है? खवारिजी। लेकिन हजरत अमीर मुआविया अपना बॉडीगार्ड रखते थे 7-8, जिसकी वजह से उन पर हमला कर ही नहीं पाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला हो गया। तो ये हमको सबक मिलता है इससे कि इस्लाम के लिए लोग कैसे मर मिटने वाले थे, इस्लाम के बारे में जानते थे कि हमारा अंजाम क्या होगा। पेशिंगोई फरमा दी गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला दिए, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए अपने जानू का नजारा पेश कर दी। एक लश्कर रवाना हुआ समुंदर पार करके। रवानगी जब हो गई तो समुंदर के किनारे पर कश्ती को जला दिया, कहा कि अब हम या तो यहां से फतह करके जाएंगे या यहीं हम मर जाएंगे, कि वापसी का कोई इरादा नहीं। जितने मुसलमान थे सब वहां पर। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी